أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی ہوگی. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believes in preaching of Islam through character. Dawat Islami wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim communities, not only in Pakistan but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bound nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مختلف مواقعوں پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہتا ہے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں. ایسے ہی اعتکاف کے دوران ہونے والا مدنی مذاکرہ کہ جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے والدین کے حقوق سے متعلق جوابات عطا فرمائے. اس مدنی مذاکرے کی VCD دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ بھی اس VCD کو اول تا آخر ملاحظہ کیجیے اور ڈھیروں اجر و ثواب کمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین. 1430 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا آج ڈبل 12واں روزہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنائیں. السلام علیکم. محمد اعظم اطاری علی برچٹھا سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ دعوت اسلامی میں اسلامی بہنوں کے مدنی کام میں جو شادی شدہ اسلامی بہنیں ان کو مدنی کام کرنے میں گھر میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں بچوں کے ابو کی طرف سے اور اپنے بچوں کے معاملات کے حوالے سے، ان کے حوالے سے کوئی مدنی پھول عطا فرمائے کہ وہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کس طرح بہتر انداز میں کرے. اول تو رشتہ حتی الامکان اسی جگہ کیا جائے جہاں ذہنی ہم آہنگی پائی جائے، یعنی کہ مدنی ماحول والے مدنی ماحول میں ہی رشتہ کریں تو آسانی ہے. اب اگر ایسا نہیں ہو پایا یا ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ایک فریق مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے اور دوسرا فریق جہاں تھا وہیں رہتا ہے، تو اس صورت میں بھی گھر میں بعض اوقات وہ ٹینشن پیدا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں حکمت عملی سے ہی معاملہ حل کرنا ہوتا ہے. اب عورت جو ہے وہ ہے محکوم،
इसलिए उसको तो उसकी इताअत करनी होगी अपने बच्चों के अब्बू की। उसके साथ अगर ये लड़ेगी कि मैं इज्तिमा में जाऊंगी, झगड़े करेगी, ज़बान चलाएगी, तो गुनाहगार होगी। तो अब हिकमत अमली इसकी ये हो सकती है कि अगर पहले किरदार उसका वाकई यानी झगड़ालू टाइप की वगैरह थी, इज्तिमा में जाने के बाद इसने चोट खाई, तो अब ये अपने शोहर से माफ़ी मांगे कि मैं वहाँ गई थी तो मुझे ऐसी सी बातें मिलनी और अब मुझे एहसास हुआ है कि अपने बच्चों के अब्बू के क्या हुकूक होते हैं, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, बहुत आपको सताया, नाफरमानी की। तो इस तरह अगर वो उससे माफ़ी मांगेगी तो उसका एक नफ्सियाती तौर पर भी ज़हन बनेगा कि ये अच्छी जगह गई है, देखो कल तक ये तड़ाक पड़ाक जवाब देती थी, आज मुझसे ये माफ़ी मांग रही है, और इसका सबब इज्तिमा हुआ दावत इस्लामी का। तो यूं उसके दिल में दावत इस्लामी के लिए खुद ब खुद जगह बन जाएगी। तो एक सूरत ये है जबकि ये सच हो। मजीद ये कि अगर वो जाने की इजाज़त देते हैं, काम करने की इजाज़त नहीं देते इधर उधर जाकर, तो इस सूरत में कि चूंकि इज्तिमा में जाने की इजाज़त है, तो अब इज्तिमा में जो सीखती है वो मौके की मुनासबत से बताती रहे कि ये बयान में कहा गया, वो सिखाया गया, ये सुन्नत पहले मुझे मालूम नहीं थी, अब मुझे सीखने को मिली, ये वाक़या बुजुर्गों का, ये करामत सुनी आज मैंने। तो इस तरह अगर वो इनफरादी कोशिश करेंगी ना, तो उनका दिल उम्मीद है कि माइल होगा कि ये इज्तिमा बहुत अच्छा होता है, मुझे भी जाना चाहिए। तीसरी सूरत ये कि कैसेट बयानात के सुनाए घर में, किसी तरह भी कभी इनका मूड देखकर बच्चों के अब्बू का अच्छा हो तो उस वक्त इनको दरखास्त करें कि आप ये कैसेट सिर्फ भले 12 मिनट सुन लें, 12 मिनट में मैं चला देती हूँ करके वो कैसेट चला दें। अब वो 12 मिनट तो कहने के होते हैं, फिर हो सकता है कोई दिल लग जाए और पूरी कैसेट सुन ले। अब इसमें हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि कैसेट उनके नफ्सियात के मुताबिक उनको चोट लगाने वाली दी जाए, और कैसेट अगर वो इनके सुनने से वो बहुत कतराते हैं, तो शुरुआत के जो हिस्से होते हैं बाज़ औक़ात कम दिलचस्प होते हैं आवाम के लिए, तो उसको छोड़कर कोई अच्छी सी करामत या कोई पुरजोश जो जुमले हो ना जहाँ, वो हिस्सा कैसेट में वो पहले से तरकीब बना ले उसकी, और फिर वो जैसे ही शुरू करे ना तो वो पसंदीदा हिस्सा लेकिन बेहतरीन हिस्सा वो उसके सामने शुरू कर दे, तो वो मतलब उम्मीद है कि सुनेंगे, और ये सुनकर हो सकता है ये आगे भी सुने। तो अब ये तो हिकमत अमली जिसमें हो, इतनी मतलब मैंने माहिर हो, तो वो ऐसा कर सकती है। खासकर हिस्से उसको सुना, पूरी नहीं सुनते। तो चौथी सूरत ये है कि रिसाले वगैरह इनको पढ़ने के लिए दे, ये नहीं पढ़ते, इनके टेबल पर या इनकी जगह पर रख दे। अब बड़ी किताब रख देंगे तो वो घबरा जाएंगे, 16 पेज का ढूंढ के रिसाला छोटे में छोटा, उसका भी कोई मेन हिकायत या कोई बहुत ही यानी कि पूरा सर वाक़या हो ना, वो उसको मोड़ के रिसाले को कोई क्लिप वगैरह लगाकर इनके सामने रख दे, और फिर हाथ जोड़ के अगर वो फिर भी कुछ कहे, इतना तो पढ़ लीजिए, आधा मिनट भी नहीं लगे, आप पढ़ तो लीजिए, देखो तो कितनी प्यारी वो करामत लिखी हुई है, कितनी अच्छी हिकायत लिखी हुई है। तो इस तरह अब ये होना चाहिए उसमें अक्ल, इस्लामी बहन में इतनी अक्ल हो कि अपने बच्चों के अब्बू की नफ्सियात के मुताबिक वो इसको इनफरादी कोशिश कर सके। तो इंशाअल्लाह कभी ना कभी वो कामयाब होंगी, इज्तिमा की तरफ माइल होंगे, काफिले में सफ़र की तरकीब बनाए, अपने काफिले की सफ़र की तरकीब में भी अपने बच्चों के अब्बू को ले सकती है कि मुझे काफिले में सफ़र करना है। अब हालात अगर घर के अच्छे और सिर्फ सुस्ती करते हैं, रोकते नहीं है, तो इस तरह हो सकता है कि मुझे काफिले में सफ़र करना है, तो आप मेरा ताउन फरमाएं। तो इस तरह भी बाद इस्लामी भाई गालिबन माहौल में आए हैं कि वो अपने बच्चों की अम्मी के ताउन के लिए वो काफिले में गए बतौर महरम। तो बतौर महरम खाली उसको भी घूमना फिरना थोड़ी होता है, इस्लामी भाइयों का काफिला अलग चल रहा है, इनका अलग चल रहा है, ये मस्जिद में ठहरेंगे, ये मकान में ठहरेंगी। तो इस तरह ये कि इस्लामी भाई की भी घर के तरकीब बन जाती है।
न जो माहौल में नहीं है उसी को